আজি ଆମେ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବା ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 13 ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ୍ 368 ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିବି। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଐତିହାସିକ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆକୁ ନେଇକରି ବେସିକ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ର ଜନ୍ମ ସେଇ କେସ୍ରୁ ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ। ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟରେ କହିବି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟରେ ଏଇ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦିଆଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଇଁଚି ଦିଆଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଏ କପଡ଼ା ଏବଂ କଇଁଚି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜିନିଷ ବନାନ୍ତୁ। କପଡ଼ାକୁ କାଟିକିରି କାଟିକିରି ଆପଣ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ନିଜ ପାଇଁ ବନେଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଇଁଚିଟା ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଆପଣ ସେ କପଡ଼ାଟାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କାଟିକରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଏକଥା କରିବେ କି? ଏକଥା କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳରୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଏ କପଡ଼ାରେ ଏ କଇଁଚି ଦ୍ୱାରା ଏ କପଡ଼ାକୁ କାଟିକରି ନିଜର ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି କୁହାଯାଇନି ଯେ ଆପଣ କଇଁଚି ଦିଆଗଲା, ଆପଣ କପଡ଼ାଟାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କାଟିକରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେଥିରେ ମନେ କରନ୍ତୁ କପଡ଼ାଟି ହେଉଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଚାପ୍ଟର 3ରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍। ଏବଂ କଇଁଚି ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆମେଣ୍ଡିଂ ପାୱାର। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର କ୍ଷମତା। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନକୁ ଆସିବ ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡ କରିପାରିବ କି? ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବ କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆମେଣ୍ଡିଂ ପାୱାର ଅସୀମିତ କି? ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନର ଯାହା କିଛି ସଂଶୋଧନ କରିଦେଇପାରିବ କି? ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, এই ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ରଖି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 4 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଗଲା ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବାକୁ। ଆମେ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସମ୍ବିଧାନକୁ, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ସେସବୁ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିକିରି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଡ଼ିଲେ।
आमर जितेबाला ब्रिटिश सरकार थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से तार मध्य बहुत अंश आम संविधान रे जोड़िले आम संविधान को मध्य इन डिटेल्स लिखिले जो यह पृथ्वीर सबुठारु लंबा संविधान बा सबुठारु बड़ संविधान है। जदि आम एत केयरफुली सब काम कले ताल पुणी आपको संशोधन कर आवश्यकता कौन अच्छी आवश्यकता अच्छी कारण जितेबले संविधान लिखा जाइथिला सेतेबेलर सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन को आखि आगे रखी गोटे भविष्यतर कल्पना करा जाइथिला एवं आपण माने जानी प्रति 25 वर्ष रे गोटे नुआ पीढ़ी आसे गोटे न्यू जेनेरेशन आसे न्यू जेनेरेशन रो आशा आकांक्षा मध्य अलग प्रकार ही थाए हवा स्वाभाविक मध्य तेणु ये सबू आवश्यकता को पूरण करने संविधान संशोधन होगा जरूरी एवं से संविधान रे संशोधन क्षमता पार्लियामेंट को दिया जाइछि। एठी आमे पुणी मूल प्रश्न को जीवा जे पार्लियामेंट जो संशोधन क्षमता संविधान संशोधन क्षमता अच्छी ताहा असीमित बा ताहा सीमित एवं पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को मौलिक अधिकार को व्यक्ति स्वाधीनता को व्यक्तिर मौलिक अधिकार को संशोधन करिपारिबो कि ये दुईटी प्रश्न उपर जिते आम आलोचना करवा आम आखि को दुईटी आर्टिकल आसूचे से आर्टिकल हूँ गोटे आर्टिकल 13 आर्टिकल 14 रु 32 पर्यंत आर्टिकल 32 पर्यंत फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13 गोटे आर्टिकल जो थे परिष्कार भाव में लिखागला जे पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को संशोधन किंबा सीमित करिपारिबो नाही सीमित करिपारिबो नाही किंबा संशोधन मध्य करिपारिबो नाही फंडामेंटल राइट रो महत्व बा वैल्यू ताको कमा जाई परिबो नाही पार्लियामेंट द्वारा आर्टिकल 368 कहूची जे पार्लियामेंट संविधान रो जे कोनसे अंश को संशोधन करि परिबो तेणु एठी द्वंद्व उपजुचे आर्टिकल 13 रे कहला फंडामेंटल राइट को संशोधन करि परिबो नाही आर्टिकल 368 रे कहूची जे पार्लियामेंट जेकोसी पार्ट को संशोधन करि परिबो ता माने फंडामेंटल राइट को मध्य संशोधन करि परिबो तो यही द्वंद्व ही आर कारण ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केमिति आसिला यही द्वंद्व ही आसिला से कथा मैं परे कहबा वर्तमान ये जो अमेंडमेंट सब हैला ता परे ताको आमे ये दुई आर्टिकल रो द्वंद्व को एनालाइज करने को आमको किसी केसेस देखा पड़ो प्रथम हूँ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 इथिरे राइट टू प्रॉपर्टी गोटे फंडामेंटल राइट थिला राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 रे थिला
ଏହି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଏବଂ ତା ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1975 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ହିସାବରେ। এই রাইট টু প্রপর্টি जो फंडामेंटाल राइट थिला सेथरे गोटे आमेंडमेंट करागला, फर्स्ट आमेंडमेंट एक्ट 1951 रे। से आमेंडमेंट करिवार आवश्यकता पड़िला। आवश्यकता कौन पड़िला? भारत जेतेबेले स्वाधीनता पाइला सेतेबेले लैंड को लेकिरी बहुत असामंजस्य थिला। बहुत लोकों पाखरे लैंड नथिला, मुष्टिमेय केतक लोकों पाखरे बहुत लैंड थिला। तेणु गोटे लैंड इनइक्वालिटी भारतवर्ष रे थिला। सेतेबेले इंडियन नेशनल कांग्रेस गोटे कमिटी कले जार चेयरमैन हेले जे.सी. कुमारप्पा। ए लैंड रिफॉर्म पॉलिसी रे दुईटे ऑब्जेक्टिव थिला। गोटे ऑब्जेक्टिव होची कृषिजात पदार्थर परिवर्तन करिबा एवं लैंड इनइक्वालिटी परिसमाप्ति घटेइबा। सेथिपई लैंड होल्डिंग उपरे एक सीलिंग करागला। ता माने होची कोन? जड़े व्यक्ति निज ओनरशिप रे केते लैंड रखिपर तार गोटा सीलिंग करागला, तार गोटा सीमा निर्धारण करागला जे जड़े व्यक्ति पाखे एतिकी जमी रहीपर, ताठू बेसी जमी से रखिपर नहीं। यही मर्म फर्स्ट आमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट एक्ट 1951 पास करागला। एथिरे आर्टिकल 31A कैपिटल ए एवं आर्टिकल 31 कैपिटल बी जोड़ा गला। मु आपको कही आर्टिकल 31 रे राइट टू प्रॉपर्टी गोटे फंडामेंटल राइट हिसाब से अच्छे। तेणु सेथरे ए परिवर्तन करागला 31 कैपिटल ए 31 कैपिटल बी जोड़ा गला, आड करागला। 31 ये कहगला जे सरकार जेकोसी व्यक्तिर लैंड को पब्लिक पर्पस पाई निज हाथ को नहीं पारे। उदाहरण स्वरूप गोटे रास्ता तैयारी होछि, से रास्ता जो बाटर जीव से प्राइवेट लोकंकर लैंड अच्छे, से प्राइवेट लोकंकर लैंड को सरकार ऑक्युपाई करें, नहीं जाई पारे, कारण नॉर्मल रास्ता तैयारी हो पारिबनी, गोटे केनाल तैयारी हो पारिबो नहीं, गोटे स्कूल कॉलेज हो पारिबो नहीं। कारण सबू जगह तो गोटे सबू गोटे सबू अंचल तो गवर्नमेंट लैंड केवल नहीं, केवल गवर्नमेंट लैंड तो सब कर गोटे रास्ता लंबा रास्ता केते बाट जीव से सबू कौन गवर्नमेंट लैंड थी सेमती केवल संभव नुहे। तेणु व्यक्तिगत जमी थी से व्यक्तिगत जमी को सरकार निज हाथ को नहीं सेठारे पब्लिक पर्पस पर जहाँ तैयारी करने को चाहते ताहा करि पारिबे। इटा 31 कैपिटल ए। आमेंडमेंट रे कहगला जे 31 बी रे पुणी कौन 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 कहगला ना 31 बी रे कहगला जे ये जो जमी को पब्लिक पर्पस रे सरकार निज हाथ को नेबे सेथिपाई सरकार स्थिर करिवे से व्यक्ति को कंपेनसेशन केते देबे। 31 ए रे पब्लिक पर्पस पाई सरकार गोटे व्यक्तिर जड़े व्यक्तिर जमी को निज हाथ को नहीं पारिबे एवं 31 बी रे सरकार से ही व्यक्ति को केते कंपेनसेशन देबे ताहा निर्णय करिवे। एवं आर्टिकल 19(1) को मध्य रेस्ट्रिक्ट करागला
जे सरकार आर्टिकल 19(1) जी कौन कहूँ ना जेकोसी लोक जेकोसी व्यवसाय प्रोफेशन कर राष्ट्र तरफ सरकार तरफ किसी रेस्ट्रिक्शन ना किंतु ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट व्यक्ति स्वाधीनतार कथा किंतु आपको रेस्ट्रिक्ट कराला आपको रेस्ट्रिक्ट कौन करागला ना सरकार जेकोसी व्यवसाय को पार्शियली किंबा टोटाली निज हाथ को नहीं पारे जबत करें सरकार जेकोसी व्यवसाय जड़े व्यक्ति करुथिबो से व्यवसाय को सरकार निज हाथ को नहीं पारे फॉर एग्जांपल आपन को बर्तमान कहूँ जे बर्तमान एयर इंडिया आम वर्तमान सरकार सेल कले टाटा को टाटा हूँ जेआरडी टाटा प्रथम व्यक्ति जे भारत रे प्रथमे गोटे प्राइवेट एयरलाइन करथिले से प्राइवेट एयरलाइन को सरकार इंडिपेंडेंट से करथिले 32 रे 1932 रे सरकार 59 रे ताकू निज हाथ को नहीं आसिले से नहीं तुम चलबनी थर आम चलू सरकार चलेबे जो कथा मुझे कहली जेकोसी व्यवसाय को सरकार निज हाथ को पार्शियली किंबा कंप्लीटली नहीं जाई पारिबे ता द्वारा से आर्टिकल 19(1) जी सेटा रेस्ट्रिक्टेड हैला सेथि पई जते बळे रेस्ट्रिक्टेड हैला सेते बळे ये अमेंडमेंट को ये जो अमेंडमेंट 31 कैपिटल ए 31 कैपिटल बी आर्टिकल 31 रे जोड़ा गला एवं आर्टिकल 19(1) जी को रेस्ट्रिक्ट करा गला ए सरकार को जो अमेंडमेंट एक्ट हैला फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ताकू चैलेंज करा गला ये अमेंडमेंट को चैलेंज करागला शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 रे एथिरे सुप्रीम कोर्ट कहिले ए जतबे केस आसिला सुप्रीम कोर्ट को पाखकू सुप्रीम कोर्ट कहिले पार्लियामेंट पाखरे अमेंड करिबार क्षमता अछि ताहा फंडामेंटल राइट को मध्य अमेंड करि पारिबो ये पुणी मूल को टिके मन पकातु पर को जाइकरी जे आर्टिकल 368 रे कहगला पार्लियामेंट संविधान रो जे कोनसी अंश को संशोधन करि परिबो ता माने एठी ए जजमेंट रे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 368 को प्राधान्य देले आर्टिकल 13 जो कथा कहूला जे फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट संशोधन करि परिबो नाही ताकू महत्व देले नाही प्राधान्य देले आर्टिकल 368 को तेणु सुप्रीम कोर्ट कहिले शंकरी प्रसाद केस रे जे पार्लियामेंट पूरा पावर अच्छी संशोधन करने फंडामेंटल राइट को मध्य संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट कहीं कथा कहले आर्टिकल 13 कथा कहीं प्राधान्य देलेनी ना सुप्रीम कोर्ट का मतरे आर्टिकल 13 हूँ गोटे ऑर्डिनरी लॉ गोटे ऑर्डिनरी लॉ तेणु यह आर्टिकल 368 उपरे लागू करा जाई परिबो नाही यह माने अमेंडमेंट द्वारा फंडामेंटल राइट को मध्य चेंज करा जाई परिबो जो कथा मु आपन कहली ये अमेंडमेंट रे आउ गोटे कथा थिला से कथा जो होची कोन ना स्टेट ये जो लैंड रिफॉर्म जो 31A 31B करागला ताको 9th शेड्यूल रे रखागला 89th शेड्यूल कौन आपको कही दूसरी आमर जो कन्स्टिट्यूशन तैयारी है से 8टा शेड्यूल थिला 9th शेड्यूल ये जोड़ागला आड करागला 8th शेड्यूल आउ 9th शेड्यूल भितर
तफात होची कौन जे 8टा शेड्यूल रे जेकोसी आईन लिखित अच्छी ताहा कोर्ट रे चैलेंज करा जाई पारिबो। 9th शेड्यूल रे जते नुआ करी ऐड करा गला ए राइट टू प्रॉपर्टी रे जो दुईटी नुआ आर्टिकल मिसिला से कहगला जे 9th शेड्यूल रे जो आइटम गुड़िक रहिबो जो विषय गुड़िक 9th शेड्यूल रहिबो ताहा कोर्ट रे चैलेंज करा जाई पारिबो नाही। अन्य अर्थ रे कोर्ट को पावर को सुप्रीम कोर्ट को पावर को सीमित कर दिया गला, पार्लियामेंट रो पावर को बढ़ाई दिया गला। तेणु या चैलेंज करा गला 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे। एटा होची सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 रे। एठी 5 जज बेंच थिला, 5 जन जस्टिस ए केस को विचार करुथिले। सेतेबेलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गजेंद्र गडकर मत देले जो संविधान तैयारी कला समय फंडामेंटल राइट को आमेंड न करिबा पई कौन जगह किसी कह जाए ना, न करिबा पई कौन सी जगह स्पेशल मेंशन करा जाए नाही, स्पेशल प्रोविजन संविधान रे तापई नाही। तेणु यह आमेंडमेंट करी हबो। किंतु सही बेंच रे जस्टिस हिदायतुल्ला एवं जस्टिस मुडलकर एथिरे राजी हेले नाही। एही 3-2 जजमेंट रे एही केस 3-2 जजमेंट रे आमेंडमेंट क्षमता को प्राधान्य दिया गला। ता माने फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट आमेंड करिबार क्षमता पाइला एवं सुप्रीम कोर्ट रो पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गला बाय एडिंग 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल जो विषय वस्तु रहिबो सेगुडी को सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज करा, कौन सी कोर्ट ऑफ लॉ रे चैलेंज करा जाय पारिबो नाही। तापरे ए जजमेंट को पुणी ये करागला, चैलेंज करागला गोलकनाथ केस रे। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 रे। ये जो केस रे 11 जज बेंच बसिले। 11 जज बेंच बसिकी एथे कहिले प्रथम थरक पई जे पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को चेंज किंबा एब्रिज बदलाई किंबा संकुचित करि परिबो नाही। द्वितीय रे पार्लियामेंट अमेंडमेंट एक्ट उपरे आर्टिकल 13 लागू हेबो। आर्टिकल 13 कौन कहूँ मु पुणी थे आपको मन पकई दूसरी। आर्टिकल 13 कही जे फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट बदल पारिबो नाही किंबा संकुचित करि परिबो नाही। सेही कथा गोलकनाथ केस रे सुप्रीम कोर्ट कहिले जे फंडामेंटल को पार्लियामेंट संशोधन करी चेंज किंबा सीमित करि परिबो नाही, कारण आर्टिकल 13 आ ऊपर लागू हेबो। ए जजमेंट एवं से गोटे रेस्ट्रिक्शन करदे कौन जे ये जजमेंटा पर्सपेक्टिव लागू हम, ताने एबेठारू आगु को जदि एमती हुए से लागू हम। पिछला भावे पिछला जो घटना गुड़िक हो जन केस करके कह सेमती हो पार ना, रिट्रोस्पेक्टिव आप्लिकेबिलिटी रहिबो नाही। यही जजमेंट पार्लियामेंट को एक सख्त धक्का देला। पार्लियामेंट तार निजस्व क्षमता पुणी थे पाइबापी 24th अमेंडमेंट एक्ट आनिला। पार्लियामेंट तार निजस्व क्षमता पाइबापी पुणी थे 24th अमेंडमेंट आनिला। एथिरे पार्लियामेंट आर्टिकल 13 क्लज 4 जोड़िला एवं आर्टिकल 368 रे क्लज 3 जोड़िला।
ଏଇଥିରେ ଆର୍ଟିକଲ 13ରେ କୁହାଗଲା କ୍ଲଜ୍ 4 ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ାଗଲା ସେଥିରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଏଥିରେ ଆର୍ଟିକଲ 13 368 ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। 368ରେ ଯେଉଁ କ୍ଲଜ୍ ଯୋଡ଼ାଗଲା କ୍ଲଜ୍ 3 ଯୋଡ଼ାଗଲା ସେଥିରେ କୁହାଗଲା ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆର୍ଟିକଲ 13 ତାପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଏ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ କରାଗଲା। ତାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏତେ ସରିଗଲା। ଆର୍ଟିକଲ 13 ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କିଛି ରହିଲାନି। ଆଉ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା ଯେ ଆର୍ଟିକଲ 13 360 ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବନି। 368ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଗଲା ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଂଶୋଧନ କଲାବେଳେ ଆର୍ଟିକଲ 13 ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଲକନାଥ କେସ୍ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟର କ୍ଷମତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଓଲଟା କରିଦିଆଗଲା। ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା, କୋର୍ଟଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦିଆଗଲା। ଏହି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ କୁହାଗଲା ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଆମେଣ୍ଡ ଏନି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ এই দুইটি যাক ক্লজ যোগ হয়েগলা আর্টিকল 13 368 যে আর্টিকল 13 368 উপরে লাগু হবনি, তা মানে বর্তমান হয়ে গলা কোণ যে পার্লামেন্ট সংবিধানর যেকୌଣସି অংশকু সংশোধন করিপারিবে এবং আর্টিকল 368 যে ল করিব তা উপরে আর্টিকল 13 লাগু ହେବ ନାହିଁ। तापरे 25th अमेंडमेंट एक्ट आसला प्रॉपर्टी राइट्स उपरे। 26th अमेंडमेंट आसला एबोलिशन ऑफ प्रिवी फोर्स। 29th अमेंडमेंट एक्ट है लैंड रिफॉर्म्स। ये सब अमेंडमेंट एक्ट गुड़ी को चैलेंज करागला केशवानंद भारती केस रे। ये केशवानंद भारती केस गोटे ऐतिहासिक केस। एथे 13 जज बेंच थिला एवं यह एक लैंडमार्क सुप्रीमकोर्ट एक लैंडमार्क जजमेंट एक हिस्टोरिक जजमेंट देले। यह को आमे नेक्स्ट वीडियो रे देखिबा।